patience, perseverance, and dedication. The three elements of success that transform a boy with a wish into a man with a name. Jai Hind everyone. I LCPL Shrishti Singh. BSSS NCC welcomes you all to our very special episode of our new segment SSB Special Series. Joining us today will be Mr. Avnendra Singh. He got recommended for FCAT 1 AFSB Dehradun in his 21st attempt. He secured All India rank 21 in FCAT 2 2022. He completed his graduation from Kirodi Mal College, Delhi. During his college days, he served as junior under officer in National Cadet Corps. During his NCC tenure, he has attended the IMA attachment camp, where he led the Delhi Directorate as a camp senior. Today's show will be hosted by LCPL Kanishka Iyer. Sir, we welcome you and we are thrilled to have you here on this online podcast show. Thank you so much, sir, for joining us today. Let's start from the beginning. Sir, could you please tell us little about your background and what motivated you to join armed forces? So, talking about my background, I belong to a completely civilian background. So, my father and my mother, they both are government teachers. And talking about my motivation to join the armed forces, uh, it is the life which armed forces offers, which motivated me to join the armed forces. Like in armed forces, which we get lot of adventurous activities. Uh, so that is the one thing which inspired me to become an officer in the Indian Armed Forces. Along with that, I belong to a village where there is no officer in my village and around 20-30 villages. So I want to set an example for the people that even tough things are possible if you do the consistent hard work. And thirdly, I wanted to make my parents feel proud. So these are all the motivation to join the armed forces. Thank you, sir. That was really an incredible tale that you have shared with us. So let's now dive into your SSB interview process. So what led you to attempt it a staging 21 times और इस बार ऐसा क्या different था previous attempt से that you can make it to AFA? आई फील दैट कि मैं डिजर्व तो बहुत पहले से करता था रेकमेंड होना बट आई वाज लिटिल बिट डेस्परेट टू गेट रिकमेंडेड और जब वो डेस्परेशन होती है तो कोई परफॉर्मेंस थोड़ी हिंडर हो जाती है ठीक है तो फ्रॉम लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स इट वाज हैपनिंग कि मैं बॉर्डर लाइन कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा था कंटिन्यूसली आई यूज्ड टू वेट बिफोर द कॉन्फ्रेंस एंड एट द रिजल्ट टाइम मेरा नाम आता ही नहीं था वहां पे तो इस टाइम पे फिर मैंने आफ्टर माय 19th अटेम्प्ट आई डिसाइडेड कि अब सिर्फ मैं डिफेंस पे रिलाई नहीं करूंगा आई फोकस ऑन द अदर एग्जाम्स एज वेल क्योंकि मेरे को करियर में आगे भी बढ़ना है अभी सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द अदर एग्जाम्स लाइक सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एसएससी सीजीएल एसएससी सीपीओ तो उसकी वजह से मेरे को एक ये फायदा हुआ कि मैं माइंडसेट मेरा थोड़ा चिल हो गया कि हाँ लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा ठीक है तो उसके चक्कर में ये हुआ कि जब एसएसबी का नेक्स्ट टाइम तो इतना चिल था मैं वहां पे कि कोई प्रेशर ही नहीं लिया परफॉर्मेंस का कोई प्रेशर ही नहीं लिया ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस जो मेरा हार्ड वर्क था ओवर द इयर्स का वो मैं प्रोजेक्ट कर पाया एसएसबी में क्यों एक रीजन उसके पीछे ये थी सिर्फ कि मैं प्रेशर नहीं ले रहा था कि मेरे को रेकमेंड होना है मेरे को रेकमेंड होना है तो बस ये था कि प्रेशर नहीं लिया उस अटेम्प्ट में क्योंकि मेरे पास प्लान भी रेडी थे एंड आई गॉट रेकमेंडेड ऑलराइट सर सर आपका डिटर्मिनेशन देख के हम सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं वी विल डेफिनेटली ट्राई कि हमसे भी हो हम लोग भी रिकमेंड हो सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर कैन यू प्लीज वॉक अस थ्रू द वेरियस stages of AFSB interview and what makes it different from normal SSB interview which we go for Navy and Army? ओके सो दिस इज ट्रू कि एएफएसबी थोड़ा डिफरेंट होता है आर्मी की और नेवल एसएसबी से तो फर्स्ट डे वन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जब डे वन में स्क्रीनिंग होती है यूजुअली आर्मी बोर्ड्स में क्या होता है 20-30
कैंडिडेट स्क्रीन इन होते हैं, बट इन एयरफोर्स अराउंड 60-65 कैंडिडेट स्क्रीन इन हो जाते हैं आउट ऑफ 180 रिपोर्टिंग. ठीक है, तो फर्स्ट इज दिस डिफरेंस. And second difference is in SSB of Army Navy we have psych on the second day. लेकिन एयरफोर्स में क्या होता है, साइक आपका सेम डे, फर्स्ट डे ही शाम को साइक हो जाता है आपका. तो एक ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है. तो इसमें थोड़ा और प्रेशर आ जाता है कि हाँ मतलब आप रेस्ट भी नहीं, उतना प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिल पाता आपको, बट यू गो फॉर दिस साइक टेस्ट. एंड साइक टेस्ट 2.5 घंटे आपको कंटिन्यूसली लिखना पड़ता है, तो वो हेक्टिक हो जाता है. सो यू हैव टू बी मेंटली वेरी रोबस्ट फॉर द एएफएसपी. सेकेंड डिफरेंस मेरे को ये लगा कि इंटरव्यू एएफएसपी का मोर रिवॉल्व करता अराउंड पीआईक्यू, लेकिन जो एसएसबी है आर्मी नेवी की, उसमें पीआईक्यू का राउंड तो रिवॉल्व करता ही है, साथ में वो जीके पे आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी नॉलेज पे भी ज्यादा फोकस करता है. और जीटीओ के पर्सपेक्टिव में मेरे को ये लगता है कि जो पीजीटी एचजीटी ये स्ट्रक्चर्स होते हैं कंपैरेटिवली इजी होते हैं एयरफोर्स में आर्मी के कंपैरिजन. Okay, so thank you for outlining the stages. We have another question, sir. Which field did you choose, like technical या फिर ground duty या flying branch? और अगर आप flying branch में जाना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा plane है या aircraft है which you are very fascinated about? एक्चुअली मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ही फ्लाइंग ब्रांच थी, बट मैं रफेल एयरक्राफ्ट उड़ाना चाहता था, बट व्हेन आई अपीयर्ड इन दिस सीपीएसएस एग्जाम ना, सो मैं उसमें फेल हो गया, क्योंकि जिस दिन मैं रिकमेंड हुआ था उस पूरी रात में मुझको नींद ही नहीं आई. ठीक है, इतनी खुशी थी. तो फिर नेक्स्ट डे जब सीपीएसएस टेस्ट में अपीयर हुआ तो वो प्रॉपर्ली मेरा माइंड ही फंक्शन नहीं कर पाया वहां पे और मैं फेल हो गया. बट नाउ आई एम ज्वाइनिंग एज अ एडम ब्रांच. उसमें फिर मेरे को आगे जाके एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट. Sir, even I want to try for flying branch, sir. CPS या फिर जो PABT एग्जाम होता है सर, उसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? सीपीएसएस और पीएबीटी की जो प्रिपरेशन है ना, वो आपके चाइल्डहुड के टाइम से स्टार्ट हो जाती है. मतलब मैंने बचपन में उतने गेम्स नहीं खेले, लेकिन मैंने देखे जो बच्चे गेम्स, मोबाइल गेम्स और जो कंप्यूटर के गेम्स काफी ज्यादा खेलते हैं, तो उनका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है ना, वो अच्छा होता है. और सीपीएसएस टेस्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए. और साथ में अगर मतलब आपको एक तो यूट्यूब चैनल है, मैं उसकी लिंक आपको सेंड कर दूंगा, उससे भी आप थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर सकते हो. Okay, thank you, sir. So we have one more question. So looking back at your journey, is there anything that you wish you have done differently this time in your attempt? Can you repeat what you want to ask? Sir, I am asking, is there anything you wish you had known earlier or you have done differently in your previous attempt and about this attempt also? I feel that I should not be desperate towards joining the armed forces. I should have to, like earlier, I never trusted that I have that potential to get recommended. Somewhere I was aware that I have potential to get recommended, but I didn't trusted myself कि that मेरे अंदर वो चीज है. So अगर ये चीज मैं पहले से लिया था कि हाँ मेरे अंदर वो चीज है और मैं प्रेशर ना लेता, so I could have recommended earlier as well. Okay, all right, sir. That was really wonderful, sir. So jumping on to the next question, sir, आपके हिसाब से एनसीसी कैडेट के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं ताकि वो अपने OLQs डेवलप कर सके और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को शार्पन कर सके? ठीक है, मैं अपना पूरा क्रेडिट जो मेरा रिकमेंडेशन का है वो एनसीसी को ही देना चाहूंगा कि एनसीसी में आके मेरे को मतलब सब कुछ जो मैंने मेरी लाइफ में जो अभी है वो सब कुछ एनसीसी का क्रेडिट जाता है उसको. लाइक एनसीसी ने मेरे को मेंटली स्ट्रांग बनाया है. ठीक है, एनसीसी में हम मतलब जब हम इनिशियल फर्स्ट ईयर में एनसीसी में आते हैं तो हम वहाँ पे आके रनिंग करते हैं, रगड़ा लेते हैं, तो वो हमें इतना मेंटली स्ट्रांग बना देता है ना कि ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई भी चैलेंज आएगा we will be able to tackle it easily. So एनसीसी का काफी रोल होता है, तो हम लोग जैसे मेंटली फिट बन सकते हैं वहां से. साथ में जो एनसीसी कैडेट्स हैं यूजुअली ये होता है, मैंने देखा है कि वो पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करते, लेकिन अगर एनसीसी कैडेट्स
जो है वो पढ़ाई को भी उतनी प्रायोरिटी दे देती है, वो एनसीसी को देते हैं, तो एक ये चीज और बेटर हो सकती है उनके लिए। साथ में जैसे हमारी एनसीसी में कल्चर था कि हमारे सीनियर्स हमें बताते थे कि आपको डिफेंस रिलेटेड नॉवेल्स पढ़नी चाहिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और आपको मैराथन्स करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। तो ये सब चीजें हम लोगों में इनकलकेट हुई और उससे ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई। फिर जब भी आपको रैंक्स मिलती है कॉर्पोरल, सार्जेंट, सीएसएम, जेईओ, एसयूओ, तो आपको आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। फिर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरीके से कंप्लीट करते हो, एक प्रॉपर प्लान बना के, फिर आप उसमें देखते हो कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज है, फिर आपके पास कितना टाइम है, तो आप उस सब चीजों से ये सारी चीजें ही आपकी ओवरव्यूज डेवलप करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और फिर आप जब पहले आप जूनियर होते हो, जूनियर टर्म में आप सीखते हो, फिर आप जब सीनियर बन जाते हो तो आप अपने जूनियर्स को सिखाते हो, तो उससे भी आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होता है। वो अल्टीमेटली सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी ओवरव्यूज डेवलप करती है। एग्जैक्टली सर। सर आई बिलीव एनसीसी के थ्रू लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह भी बहुत ज़्यादा ग्रो होती है और हमें जो रोल्स मिलते हैं दैट रियली हेल्प्स सर। दिस वाज रियली अ ग्रेट एडवाइस। काफी ज्यादा, क्योंकि आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है एनसीसी में, क्या होता है, सब लोग मोटिवेटेड होते हैं टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। तो आपकी फिर एक आप उस तरीके से बातें करते हो कि हाँ यार, लाइक हम लोग जो एनसीसी में थे, हमारे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे थे, हम लोग डिस्कस करते थे एसएसबी से रिलेटेड। यार अगर किसी फोटो का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, यार इस फोटो में क्या स्टोरी बन सकती है अच्छी, तो अगर मेरे को अच्छा आइडिया आ रहा है तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा, या मेरे फ्रेंड्स को अच्छा आइडिया आ रहा है तो मैं उनका भी आइडिया एक्सेप्ट करूंगा। तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े ग्रूम करते हो, एसएसबी की प्रिपरेशन भी होती रहती है। ऑलराइट। So were you afraid of SSB medical test? I'll say no, I was not afraid because I used to believe in God. Like मैं initially God में उतना believe नहीं करता था, but जब consistent failures आ रहे थे ना मेरे को, तो उस मोमेंट में मैंने फिर God में believe करना भी start कर दिया। तो when I got recommended in my 21st attempt ना, तो I was damn sure कि मैं academy जा रहा हूँ। पता नहीं ये heart से आवाज आई थी कि I'll join the Air Force Academy definitely। तो ये शायद एक भगवान का बिलीफ था जो मतलब था मेरे को। और मैं बताना भी चाहूंगा कि हम लोग ने 5 लोग थे मेडिकल्स के टाइम पे, और सिर्फ मैं अकेला बंदा फिट हुआ था वहां पे। तो बस मतलब इसमें भगवान का भी काफी रोल है, और मैं लकी था इस करके भी हो गया। Exactly sir, like I have also heard कि AFSB का जो मेडिकल टेस्ट है वो काफी ज्यादा टफ होता है like नॉर्मल एसएसबी से, बिकॉज उनको पायलट्स भी चाहिए होते हैं और इट इज वेरी प्रोफेशनल। हाँ, पायलट ड्यूटी के लिए वो क्या कर, ओके ओके, ये सब से मैं कह रहा हूँ पायलट ड्यूटी के लिए वो लोग नॉर्मल जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाते हैं उनको तो एक ही एक्सरे होता है, लेकिन जो पायलट ड्यूटी के लिए जाते हैं उनके 6 से 7 एक्सरे होते हैं। तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, फिर वो एक्सरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल आती है, और इस करके काफी बच्चे मेडिकल आउट हो जाते हैं। Okay, so we have this question which says that what is important to know for AFSB personal interview day, and what are some habits and strategies that will help to face personal interview? ओके, तो एएफएस सिर्फ एएफएसपी के पर्सपेक्टिव से अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है ना, तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर पीआईक्यू। जो भी आपने पीआईक्यू में लिखा है, आपको उसका थोरोली पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम आई फील कि जो एएफएसबी में इंटरव्यू होते हैं वो मोर अराउंड रिवॉल्व करते हैं अराउंड योर फ्रेंड्स, फैमिली। आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या स्ट्रेंथ सोचते हैं, क्या आपकी वीकनेस सोचते हैं। तो आप इन सब चीजों का इंट्रोस्पेक्शन पहले से ही करके जाओ कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके फ्रेंड्स आप में क्या स्ट्रेंथ समझते हैं, क्या वीकनेस समझते हैं, पेरेंट्स क्या स्ट्रेंथ समझते हैं, क्या वीकनेस समझते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन, सो मेरे को ऐसा लगता है कि नाउ आई कैन से कि डोंट प्रिपेयर फॉर एसएसबी, प्रिपेयर फॉर लाइफ। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी बाई कर्नल युद्धवीर सिंह, एंड उन्होंने एक कंसेप्ट बताया था 5 BRCC, और उस कंसेप्ट ने मेरे को लिटरली काफी हेल्प की, मतलब एसएसबी क्लियर करने के लिए। उसमें यही कहते थे वो कि आप अपनी लाइफ को अच्छा करो, जो आपके रोल्स हैं एज ए सन,
एज अगर हम लोग एनसीसी में है, तो अगर हम एनसीसी में जूनियर अंडर ऑफिसर था, तो एज ए जूनियर अंडर ऑफिसर, फिर मैं एथलीट हूँ, तो एज ए एथलीट मेरी क्या क्या रोल्स हैं, एज ए फ्रेंड मेरे क्या क्या रोल्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं उनकी हेल्प करना, है ना। तो उन सब रोल्स को आप अपना इफेक्टिवली निभाओ, तो और अपनी लाइफ को अच्छा रखो, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहना चाहिए, एक टाइम टेबल वाली लाइफ होनी चाहिए आपकी। और आप अगर डिफेंस के लिए जा रहे हो, तो आप डेली रनिंग करने चाहिए, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। एंड एट द सेम टाइम अगर अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए नॉवेल्स पढ़नी चाहिए आपको। तो ये सब चीजें काफी हेल्प करती हैं प्रिपरेशन के लिए। All right, sir. So, which is your favorite novel? My favorite novel is The Charge of Gorkhas by Rachna Rawat. Okay. All right. सर साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है उसको अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं? लाइक आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस साइक थिंग व्हिच हैपेंस इन एएफएसबी इंटरव्यू। तो साइक के पर्सपेक्टिव देखो, साइक में 4 टेस्ट होते हैं। पहला टीएटी, देन डब्ल्यूएटी, एसआरटीज एंड एसडीटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम सेल्फ डिस्क्रिप्शन के बारे में प्रिपेयर वो करते हैं, डिस्कस। सेल्फ डिस्क्रिप्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जैसे उसमें 4 ओपिनियन होते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, और आप कैसा बनना चाहते हो फ्यूचर में। तो आप अपने टीचर्स के साथ बैठो, उनसे पूछो कि आपको मेरी कौन कौन सी क्वालिटीज अच्छी लगती है, ठीक है। सेम चीज आप अपने पेरेंट्स से पूछो, सेम चीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ पूछो, और फिर उसमें से जो चीजें आपको लग, और साथ में जैसे आपने क्वालिटी लिखी कि माय टीचर्स फील दैट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, तो उसको एक एग्जांपल ऐड कर दो। दे फील मी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज व्हाटएवर टास्क इज गिवन टू मी आई कंप्लीट इट बिफोर डेडलाइन, ठीक है। जैसे आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि यू आर ट्रस्टवर्दी पर्सन, सो दे से मी ट्रस्टवर्दी बिकॉज आई कीप देयर सीक्रेट एज सीक्रेट ओनली, आई डोंट शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। They say me helpful because I guided them in studies. इस तरीके से आपको अपना एसडीटी प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर उसके अलावा टैट की बात करते हैं हम, तो टैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो ये रहती थी कि मैं ट्राई करता था कि जो भी फोटो दिख रही है उसमें मैं अपने आप को कहीं रख पाऊँ, अपने आप को रिलेट कर पाऊँ। जैसे कि अगर कोई लड़का भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, तो अब जैसे मैं मतलब व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज आई वाज ओवरवेट, आई वाज 95 केजी अप्रोक्सीमेटली। तो उसके बाद से मैंने अपनी रेगुलर रनिंग करके, रेगुलर मैराथन्स करके अपना वेट रिड्यूस किया था, एंड देन आई बिकम अ फुल मैराथन रनर। तो मैं वो स्टोरीज पे लिख देता था, ठीक है, क्योंकि वो मेरी लाइफ के साथ रिलेट हो रही थी, है ना। तो मैं ट्राई करता था कि मैक्सिमम स्टोरीज मेरी लाइफ के साथ रिलेट हो जाए, या मैंने कभी किसी की हेल्प की हो, या फिर मैंने कोई चैलेंज भरा टास्क कंप्लीट किया हो। लाइक हमारी एनसीसी में एक एनसीसी फेस्ट होती थी 3 दिन, तो ब्लैंक स्टोरी में मैं उसके बारे में लिख देता था कि ही वाज द सीनियर अंडर ऑफिसर, ही वाज हैविंग दिस रिस्पांसिबिलिटी अबाउट कंडक्टिंग द फेस्ट। फिर उसने टीम को डिवाइड किया, फिर उसने क्या क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज दी, फिर वो लिख देता था पूरे पेपर पे। लेकिन फिर कुछ स्टोरीज ऐसी होंगी जिसमें आप अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पाओगे। जैसे एक फोटो आती है जिसमें एक कैनन होती है और एक इंसान चलता हुआ जा रहा है, तो उसमें मेरे को लगता था कि मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। तो फिर वहां पर मैं कुछ ऑथोरिटीज भी डाल देता था, जैसे उसमें मैं एक ऑफिसर बना देता था उसको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और वो कैनन का एक्सकवेशन करा देता था। और ये थोड़ा इमेजिनेशन लाने में ना, मेरे को एक मेरी हैबिट थी कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता था काफी ज्यादा, डिस्कवरी प्लस पे, हॉटस्टार पे। तो उसने मेरे को काफी हेल्प की कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो एक ये भी आप हैबिट मतलब अपनी इनकलकेट कर सकते हो। और टॉकिंग अबाउट वैट, तो मेरे को ऐसा लगता है वैट में आपकी वो प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी चेक करते हैं कि आप जैसे 15-15 सेकंड में वर्ड्स फ्लैश होता रहता है, नेक्स्ट वर्ड फ्लैश होता रहता है, तो आप उस पर कुछ प्रॉपर सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, या फिर आपके माइंड में अगर कुछ नेगेटिविटी भरी पड़ी है, 15 सेकंड में इतना प्रेशर होता है कि वो नेगेटिविटी अल्टीमेटली निकल के आ जाएगी। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप इंटरनेट पर काफी वर्ड्स दिए गए हैं, उन पे प्रैक्टिस करके पहले से जा सकते हो। और सेम एसआरटी के केस में मैं ये करता था कि एसआरटी को मैंने पढ़ा, फिर मैं सोचता था कि मैं इस केस में क्या करूंगा। अगर मेरे आता है कि थीव्स आ गए आपके आसपास, तो आप क्या करोगे। तो मैं सोचता था कि जो मैं उस सिचुएशन में परफेक्टली कर सकता हूँ
फिर मैं उसको छोटा छोटा करके मतलब टेलीग्राफिक लैंग्वेज में करके लिख देता था, कोमा लगा ला। और ये था एसआरटीज के पर्सपेक्टिव में, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट को इसी तरीके से मैंने टैकल किया। सर आई हैव दिस वन डाउट कि एसआरटी या फिर जब भी हम स्टोरी लिखते हैं, सर क्या ज़रूरी होता है कि हम उसको ऑफिसर या फिर ऐसे आम पर्सन से रिलेट करें? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। मैं मतलब मेरे फर्स्ट रिकमेंडेशन के टाइम पे मेरी 12 में से 9 स्टोरीज में कॉलेज स्टूडेंट ही था मेरा हीरो। ओके। तो आप सबसे अच्छा बेस्ट इसलिए होता है ना, आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ ऐड करने के लिए, क्योंकि आपको एक्शन से याद होंगे उससे रिलेटेड। अगर आपने कुछ लाइफ में किया है, अगर आपने कुछ ऑर्गेनाइज कराया है, तो आपको पता है कि आपने कैसे कैसे करके उसको ऑर्गेनाइज किया है, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो। इसीलिए अपनी लाइफ से रिलेट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। All right, sir. Sir, and how did you prepare for written examination, sir? And what are some books that we can go for? फॉर एफकैट और सीडीएस। Sir, AFCAT, sir. ओके। तो मैं सच बोलूं तो मैंने एफकैट के लिए एक भी दिन प्रिपरेशन नहीं की है। मैं सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा था अपनी, और उसमें ही मेरा फिर एफकैट निकल जा रहा। बट फिर भी अगर एफकैट की प्रिपरेशन करनी है ना, तो बुक्स, एक दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप उसको रेफर कर सकते हो। और अभी तो ऑनलाइन सोर्सेज इतने हो गए हैं, जैसे सीडीएस जर्नी करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां से काफी बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं ये एफकैट का एग्जाम। तो सीडीएस जर्नी का आप कोर्स ले सकते हो, उसकी यूट्यूब वीडियो इतनी सारी हैं, तो वहां से आप रेफर कर सकते हो। और ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, जो मैंने फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे थोड़ी बहुत पढ़ी थी, बट उसके बाद कभी नहीं पढ़ी। और आप मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, फिर वो गलती को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। All right, sir. Sir, AFCAT और CDS में मैंने सुना है कि AFCAT is easier. So, यस, इट is इज that इजियर। true? इट इज All वेरी right. ट्रू। ये बहुत ज्यादा, एफकैट इज वेरी इजी। So, फिर हम कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली बच्चों का 160 150 तक आ जाता है, विच इज नॉर्मली कट ऑफ AFCAT एग्जाम। सर, पर वो लोग मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। तो देखो, आई बिलीव कि 250 से ऊपर ही चाहिए होता है अगर आपको मेरिट इन होना है तो सर आप क्या? नहीं मतलब अगर आपको मेरिट इन होना है तो आपके 170 180 पे भी आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आप, हाँ ये बॉयज के लिए है, लेकिन अगर आप अगर गर्ल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो तो थोड़ा बिट टफ हो जाता है। उनको 220 230 इतना स्कोर लेके आना पड़ता है, और एसएसबी में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। देखो, मार्क्स अगर आपको ज्यादा लेके आने हैं तो उसके लिए सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी यही रहती है कि आपको अटेम्प्ट ज्यादा करो। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करो, और क्वेश्चन अटेम्प्ट आप जब ज्यादा करोगे जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, तो फिर प्रिपरेशन पर फोकस करो। आप जिसमें मैं बोला सीडीएस जर्नी करके एक प्लेटफॉर्म है। सीडीएस जर्नी का प्लेटफॉर्म मतलब मैंने उससे मतलब उतना पढ़ाई नहीं की, बट मैंने देखा है कि काफी बच्चों ने उससे पढ़ के पेपर निकाला है। उस प्लेटफॉर्म पर रेफर कर सकते हो कि 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। ठीक है, और उसमें भी शायद 10-12 चैप्टर्स है, उसी में से आते हैं वो 25 क्वेश्चन। तो सीडीएस जर्नी में यूट्यूब चैनल पे 4-5 वीडियो पड़ी है, जिसमें उसने सारे टाइप के क्वेश्चंस करा रखे हैं जो एफकैट के एग्जाम में आते हैं। बस वही है कि आपको प्रॉपर सोर्स पता होना चाहिए इसके लिए। किसी एक सोर्स को स्टिक करो कि हाँ मेरे को ये बुक पढ़नी है और ये मेरे को यूट्यूब वीडियोस देखनी है, एंड कीप प्रैक्टिसिंग देम। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। दैट इज द ओनली स्ट्रेटजी टू क्लियर द एग्जाम विद गुड मार्क्स। Okay, sir. So how can we prepare for math section, which is very tough, I believe? मैथ सेक्शन के लिए देखो, जब तक आप बिलीव करते रहोगे ना इट इज टफ, तो वो टफ लगता रहेगा। मतलब ये मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बता रहा हूँ। मेरे को इंग्लिश टफ लगती थी बिकॉज मैं 8th क्लास तक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा था, तो मेरे इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन उतना अच्छा नहीं था। तो फिर मेरे को लगता था कि टफ है इंग्लिश नहीं होगी, तो मैं उतनी पढ़ता ही नहीं था उसको। लेकिन द डे आई स्टार्टेड स्टडिंग द इंग्लिश, तो ये लॉकडाउन के टाइम की बात है। तो उससे पहले मेरे सीडीएस का बताता हूँ। सीडीएस में मेरे 45 मार्क्स और 50 मार्क्स 52 मार्क्स इतने आते थे। लेकिन आफ्टर स्टडी इंग्लिश है ना, मैंने इतनी अच्छी मेरी इंग्लिश हो गई कि आई स्कोर्ड
इवन 83 मार्क्स इन CDS इंग्लिश आउट ऑफ 100। तो पढ़ो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप लगाओ 3-4 महीने लगाओ एंड योर मैथ्स विल आल्सो इम्प्रूव। सर वन मोर क्वेश्चन इज देयर दैट इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनको इजीली फ्लाइंग ब्रांच मिल जाता है कंपेरेटिवली जो ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स या आर्ट्स के हैं। लाइक आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, तो क्या मैं मतलब am I eligible for flying branch and be a pilot in Indian Air Force? देखो, फ्लाइंग ब्रांच के लिए ना कुछ क्राइटेरिया है कि आपके पास 10+2 में आपके पास साइंस होनी चाहिए। साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना कंपलसरी है 10+2 एंट्री में, और उसमें भी आपको फिजिक्स और मैथ में 60% कंपलसरी है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, जो कि मतलब सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट फुलफिल कर देते हैं, तो इस करके यही रीजन है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या जो BSc बैकग्राउंड के मैक्सिमम वही फ्लाइंग के लिए जाते हैं। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फिल कर रहे हो कि आप फिजिक्स और मैथ्स आपका 60% है इन क्लास 12, तो यू कैन गो टू फ्लाइंग इजीली। ग्रेजुएशन में आपने अगर BA किया है, BS आपने BBA किया है, BCom किया, वो मैटर नहीं करेगा, बट आपको 12th में होनी चाहिए आपके पास। Okay, sir. So thank you so much for shedding light on this AFCAT related questions, and your expertise will surely benefit us. So now, as we conclude our conversation, what message would you like to share with our listeners, especially those who may be facing problems and their own challenges? मतलब मेरे एक सिंपल सा मैसेज रहेगा, एक कोट थी जो उसको मतलब पढ़ के मैं भी मोटिवेट होता रहता था, वो था कि टफ टाइम डोंट लास्ट लॉन्ग बट टफ पीपल डू। लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, सो जस्ट उसको चले जाएंगे, एक टाइम के बाद चले जाएंगे। मतलब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ के जो फ्रेंड्स, हम लोग 4 लोगों का फ्रेंड सर्कल था, उसमें से 3 लोग वो अकेडमी जा चुके थे। आई वाज द फर्स्ट ओनली वन जो स्ट्रगल कर रहा था, बट वही था उस मोमेंट पे थॉट्स आते थे गिव अप कर देता हूँ कि छोड़ो, कुछ और ट्राई करते हैं, बट वही है कि अगर आप गिव अप कर दोगे तो फिर वो आप मिलेगा ही नहीं आपको जो चाहिए। तो वो ये टफ टाइम रहेगा, लेकिन आपको उसमें भी टफर बन के निकलना है। और टफ टाइम तो एक आपकी अपॉर्चुनिटी है कि हाँ मतलब कि आपको और लोग सुनेंगे। अब मैं 21st अटेम्प्ट में रेकमेंड हुआ, इस करके तो आप लोग मेरे को सुन रहे हैं। वहीं पे अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में होता तो उतना कोई सीरियसली नहीं लेता कि हाँ चलो हो जाते। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने लोग होते हैं रेकमेंड, बट हाँ 21st अटेम्प्ट मैंने परसिवरेंस दिखाई, डेडिकेशन दिखाई, तो बस यही सेम चीज दिखानी है। और हाँ एक और चीज कि आप परसिवरेंस डेडिकेशन दिखा रहे हो, बट साथ में इम्प्रूवमेंट करते जाओ। अगर कोई डिफेंस एस्पिरेंट अपने फिजिकल्स में इम्प्रूवमेंट करे हो, रेगुलर रनिंग के लिए जाए, बुक्स अच्छी बुक्स पढ़े, डिफेंस रिलेटेड बहुत सारी नॉवेल्स है वो पढ़ सकता है, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकता है। साथ में एक्सप्लोर करे, प्लेसेस को एक्सप्लोर करो। जितना आप प्लेसेस को एक्सप्लोर करोगे उतना आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी। साथ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग है तो आप पेरेंट्स की खाना बनाने में हेल्प कर सकते हो थोड़ी सी, ठीक है। आपके फ्रेंड्स को कोई हेल्प चाहिए, आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपके फ्रेंड्स को हेल्प चाहिए तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो पढ़ाई में। या फिर आपको कोई स्पोर्ट आता है, आपके फ्रेंड को नहीं आता, आप उसको वो सिखा सकते हो। सो इससे क्या होगा, एज ए ह्यूमन आप इम्प्रूव कर जाओगे, ठीक है। और फिर अगर आप एज ए ह्यूमन अच्छे हो तो आपके पास कितनी स्टोरीज होंगी टैट में लिखने के लिए, फिर SSB में इंटरव्यू ऑफिसर को बताने के लिए। तो बस यही है, अपने आप को अवेयर रखो और इम्प्रूवमेंट करते रहो कि हाँ अपनी। एक मेरी हैबिट थी डायरी एंट्री, डायरी एंट्री ने मेरे को इम्प्रूव होने में काफी हेल्प किया। जब भी मैं SSB जाता था आके लिखता था कि हाँ इस अटेम्प्ट में ये गलती हुई, अगले अटेम्प्ट के लिए मैं फिर अपना प्लान प्रिपेयर कर लेता था कि इस तरीके से मैं प्रिपेयर करूँ जब तक मेरी अगली SSB है। तो ये सारी हैबिट्स इनकलकेट करो, ये हेल्प करेंगे आपको ओवर द पीरियड ऑफ। All right, sir. Sir, please share your emotion and aspiration as you embark on this new chapter of your life. यार इमोशन तो मतलब मिक्स्ड, इस टाइम पे मिक्स्ड इमोशन आ रहे हैं, क्योंकि अब एक ट्रांजिशन पॉइंट आ गया मेरी लाइफ में कि हाँ अभी मैं मतलब अभी तक तो छोटा बच्चा था घर पे, मतलब मम्मी पापा के साथ मजे करता रहता था, तो उतनी टेंशन भी नहीं थी, और टेंशन तो आगे भी नहीं रहेगी। बट हाँ अब ये है कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। एज एन ऑफिसर आपको पूरा अपना प्लेटून की जो है उसकी भी टेक केयर करनी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है। अब देश का जो है वो भार अपने कंधों पे आ जाएगा, ठीक है। चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेगी और आपको इफेक्टिव तरीके से हैंडल करनी पड़ेगी।
तो एक्साइटेड भी हूँ, काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, बट थोड़ा ये भी है कि अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, बट हाँ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर माई पर्सनल ग्रोथ एज वेल। सर मैं कहना चाहूँगी ये बहुत ही इंगेजिंग और इंसाइटफुल सेशन रहा है। आपने अपना कीमती समय दिया, हमें पता चला कि आप देहरादून में हो, उसके बाद भी आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, वो भी ऑनलाइन। थैंक यू सो मच सर। And at last, I would like to congratulate you for joining Indian Air Force Academy. Sir, all the very best. थैंक यू सो मच। On behalf of PSS and NCC, I would like to congratulate you and I'm giving you my heartfelt gratitude. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। और आप लोग भी सब मेहनत करो, आप जो आपकी एनसीसी यूनिट वाले सारे बच्चे, और मेरे इंटरव्यू से जिसको भी हेल्प मिलेगी वो ले उतनी हेल्प उससे, ठीक है। मोटिवेटेड होके अपना आए अकेडमी में एज माय जूनियर्स, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। Sure, sir. I will be there. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच।